Good morning, all. Am I audible? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Let me share my screen. Is it visible? Yes, sir. Okay, fine. So, today's learning outcomes are you will be able to know about the direct and extended transition function, which you already have done in your assignment. Okay, to understand the acceptance criteria by the finite automata, define NFA, that is non-deterministic finite automata, and what are the basic differences between deterministic finite automata and non-deterministic finite automata. Okay, so let us start. As we have already discussed that an alphabet is a finite non-empty set of symbols, and which symbol is being used for denoting the alphabet? Sigma. Sigma. Very good. So we are using sigma to denote this thing. Now just consider this. What is represented here? 0 and 1. Input तो इसमें इनपुट अल्फाबेट क्या है? The 0 first and 1. 0 and 1. And in the second case, where it is written that all lowercase letters, yes, what are the symbols? बताइए. A, B, C till Z. Z. Whether this is finite or not? Yes, sir. Very good. Finite, sir. Then alphanumeric. Lowercase letters, uppercase letters, and 0 to 9, and so on. Fine. So alphabet is nothing but what? Set of symbols. And the basic characteristic was it is a finite non-empty set of symbols. Okay. Next thing, string. A string or word is a finite sequence of symbols chosen from sigma. Okay. So if I say that you are provided with sigma is equal to 0 and 1, then tell me whether 0, 1, 1 and so on is a string or not. No, sir. और भी लोग बताइए. अभिनव. Yes, sir. ये अभी जो हमने डिनोट किया W is equal to something 0 1 1 1 and so on, क्या ये स्ट्रिंग हो सकता है? No, sir. Why? Sir, I'm not sure. Just read the definition. स्ट्रिंग का definition read करिए. A string or word is a finite sequence of symbols chosen from sigma. Okay. That is 0, 1. Okay, तो यहाँ पे आप It is not बताइए finite. कि 0 और 1, तो स्ट्रिंग जो दिख रहा है वो तो 0 और 1 का ही कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना. Sir, it is not finite. वेरी गुड. तो ये आपको ध्यान रखना है when we talk about string. String of word is a finite sequence of symbols chosen from sigma, that is input alphabet. ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Suppose I write 0 1 1 1 1.
अब इसके विषय में बताइए। Yes, sir. Sir, It's it a is a string. string. इट इज ए स्ट्रिंग। और लेंथ के विषय में बताइए इसको। 5. Sir, 5. 5। तो काउंट कर लिया ना हम लोगों ने, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थिंग, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे, मॉड ऑफ W। फाइन, जस्ट सी एम्प्टी स्ट्रिंग। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस थिंग, गए हैं ना जब आपने वीडियो देखा होगा? एनीवन? Yes, जी sir. सर। हाँ बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी स्ट्रिंग? Empty string का लेंथ लेंथ जीरो होता है सर। 0 होता है। वेरी गुड। So ultimately, if we talk about empty string, then we call this as a 0. Okay, length of this is 0. So length of a string W denoted by mod W is equal to the number of non-epsilon characters in a string. Okay, लेंथ इसका आप देखिए, x को डिनोट किया 0 1 0 1 0 0। Fine, length is denoted by mod of x and it is equal to what? 6. 6. Now write down in your notebook this string. And what is the length? Six. सभी लोग लिखें अभी बोल। सर ओके, चैट बॉक्स में लिखें जिन्होंने सॉल्व कर लिया। लेंथ लिखना है, ठीक है? व्हाट यू हैव सॉल्व। सिक्स आ रहा है सबका? यस और नो? Yes, sir. तो यस सर। किसे हम लोगों ने यहाँ काउंट नहीं किया? Epsilon. एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है? तो एम्प्टी स्ट्रिंग को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया, इसको लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कैरेट साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ओके, लैम्डा और कैरेट साइन इज गोइंग टू बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट आल्सो द सेम एम्प्टी स्ट्रिंग। फाइन, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके Yes, सर। sir. Now, if we are having two strings, fine, x and y, then concatenation of two string is what? X appended by y. जैसे यहाँ w है suppose this thing, and suppose हम लोगों ने z को लिख दिया 0 1 और concatenate करना चाह रहे हैं wz, तो किस तरह से concatenate होगा बताइए? सबसे पहले कौन से रखे जाएंगे स्ट्रिंग के एलिमेंट? W। पहले एक X का. x नहीं, यहाँ पर देखिए wz की बात हो रही है। वी आर हैविंग टू स्ट्रिंग्स। पहले डब्ल्यू सर। W, तो Sir, W क्या है? 0 1 1 1 and 1, ये W का पार्ट हो गया। इसके बाद क्या आएगा? जेड का 0 and 1। अब लेंथ One. ऑफ
लेंथ ऑफ WZ, बताइए क्या है लेंथ यहाँ पर? 7. तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि नहीं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग W प्लस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग Z, ट्रू और नॉट? Yes, sir. ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर हैं। लेंथ की अगर बात करें और कॉन्कैटिनेशन किस तरह से होता है, फाइन। व्हाट अबाउट दिस थिंग, क्या आएगा रिजल्ट? W. W 7. है, नहीं लेंथ यहाँ नहीं है, यहाँ मॉड ऑपरेशन हम लोगों ने नहीं लगाया। क्या किया है, W कॉन्कैटिनेटेड विथ लैम्डा कॉन्कैटिनेटेड, और उसके बाद क्या है, इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्कैटिनेटेड विथ W। तो लेंथ की अगर बात करेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, फाइन, लेंथ ऑफ W प्लस दिस थिंग। और आपको मालूम है कि Lambda. एम्प्टी स्ट्रिंग का लेंथ कितना होता है? 0. 0. तो ये तो क्या हुआ, लेंथ ऑफ W ही हो जाएगा ना, यस और नो? जी सर. और W Yes, sir. concatenated with lambda, lambda concatenated with W is nothing but the string itself, है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लियर है? Yes, sir. गुड। नेक्स्ट, पावर्स ऑफ एन अल्फाबेट, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सिग्मा अल्फाबेट है, सिग्मा के, सिग्मा रेज टू पावर के, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ के, इसको अपने नोटबुक में लिख लेंगे, very important from your competition point of view also. Okay, sigma k is what, the set of all strings of length k. suppose यहां हम लोग ने बात की 0 1, ठीक है, सिग्मा 0, बताइए क्या होगा इसके अंदर? सर लैम्डा होगा। और कोई? अनिकेत आप बताएं। सर लैम्डा ही होगा सर। हम्म, सर लैम्डा ही होगा लैम्डा लैम्डा। होगा, क्यों, वाई? सर, वो एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है, टू द पावर 0। नहीं, इसको आपको डिफाइन करना होगा, आपके पास डेफिनेशन है, जस्ट सी द डेफिनेशन ऑन द स्क्रीन। सर वो उसी लेंथ का डिफाइन कर रहा है, तो लैम्डा हाँ वाला का लेंथ 0 होता है, हाँ, तो उसका भी लेंथ 0 हो जाएगा। बिल्कुल, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0, ठीक है। और लेंथ 0 हम लोगों को मालूम है कि किसका है, एम्प्टी स्ट्रिंग का। तो डेफिनेटली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लैम्डा की बात की और एप्सिलॉन की बात की। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, यहाँ क्या होगा, 0 और 1। 0 1, द सिग्मा इटसेल्फ। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 सर 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1. 1 1, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, सिग्मा स्टार, इसे हम लोग स्टार क्लोजर के नाम से भी जानते हैं, स्टार क्लोजर ऑफ सिग्मा। क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, यूनियन ऑफ सिग्मा 0 सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सो ऑन। तो ये फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट? Infinite. इनफाइनाइट होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा कि इफ वी टॉक अबाउट सिग्मा, दैट इज इनपुट अल्फाबेट, दिस इज नथिंग बट द finite non-empty set of input alphabet. But when we talk of star closure of sigma, it is going to be the combinations of all the strings, 0 or more symbols obtained from this input alphabet. तो सपोज यहां अगर बात करें तो कुछ इसके जो मेंबर्स हैं वो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अपने नोटबुक में लिखें।
if we are having sigma is equal to 0 1, what are the members of this set sigma star? लिख लीजिए जल्दी से, हो जाए तो चैट बॉक्स में लिखते चलेंगे। डन। यस, किसी का हुआ? गुड। पहला एलिमेंट क्या लिखा आप लोगों ने? एप्सिलॉन। लैम्डा। वेरी गुड। 0 1 0 1 1 1 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी। तो ये इनफाइनाइट सेट हुआ। नेक्स्ट इज योर सिग्मा प्लस, दैट इज पॉजिटिव क्लोजर। ओके, सो पॉजिटिव क्लोजर को अगर आप देखें ध्यान से तो क्या हो रहा है यहाँ पर? सिग्मा स्टार में से लैम्डा माइनस हो गया था। सिग्मा स्टार में लैम्डा माइनस हो गया। तो मतलब इसके एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होंगे? 0 1। ठीक है, ये क्या कहलाया? पॉजिटिव क्लोजर ऑफ इनपुट अल्फाबेट। ठीक है, और जो अभी आपने रिजल्ट बताया एक सिग्मा प्लस इज इक्वल टू व्हाट? फाइन। ये रिजल्ट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। वेरी गुड। जो क्वेश्चंस दिए गए, इन क्वेश्चंस को डील करने से पहले जस्ट अ क्विक रिकैप जो हम लोगों ने अभी बात की थी। 5 टपल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा की अगर बात करें तो डीएफए वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, क्या क्या है 5 टपल्स? यस, Q sigma delta Q naught F एफ इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ डायरेक्ट ट्रांजिशन फंक्शंस की बात कर रहे थे, तो ये मैप कहाँ से कहाँ कर रहा था बताइए? Q cross sigma to Q. सिग्मा Q क्रॉस सिग्मा इंटू Q। ओके, तो कुछ इस तरह की हम लोगों ने बात की थी कि सपोज डेल्टा Q नॉट 0 इज गोइंग टू, अगर यहाँ हम लोग देखें, ध्यान से देखिए, तो ये कहाँ पे जा रहा है? या तो क्यू नॉट पे रह जाएगा या फिर Q1 पे जाएगा। Q नॉट Q1। तो क्या ये डिफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? ये हम लोगों ने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात की थी, है ना? ये याद आ रहा है ना? ये 5 टपल रिप्रेजेंटेशन में डेल्टा जो था वो क्या था? Q क्रॉस सिग्मा मैपिंग इनटू Q, और ये केस किसका था? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो क्या ये जो डिफिनेशन है यहाँ लागू हो रहा है? No, sir. नहीं। तो मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस है, isn't it? इस केस में एलिमेंट्स अगर देखें तो ये तो सेम ही है। पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है? Q से, दूसरा इनपुट अल्फाबेट से। हो रहा है ना ये? यस सर। लेकिन यहाँ जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, जहां मैपिंग हो रही है, वो Q नहीं है। ठीक है, तो इन केस ऑफ NFA इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। हम लोग यूनिकली क्या कर सकते हैं, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये अगला मूव जो है वो कहाँ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे?
पावर सेट ऑफ Q से। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ Q। तो इसमें क्या है, अगर सपोज आपके पास दो स्टेट्स हैं Q0 Q1, ठीक है, इन केस ऑफ Q, तो पावर सेट्स के एलिमेंट लिखिए जल्दी से, कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे बताइए। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ Q। यस, सर 5 होगा, थर्ड होगा, 5 मतलब एम्प्टी सेट। नेक्स्ट Q0, Q0, नेक्स्ट Q1, Q1, नेक्स्ट Q0, Q1. Q0, Q1। ओके, तो यहाँ जो मैपिंग होगी वो क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है Q1 पे हो सकता है, Q0 पे हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ Q0 Q1। तो अल्टीमेटली इन केस ऑफ NFA सर्टेन काइंड ऑफ ट्रांजिशन मे नॉट बी अलाउड, मतलब यहाँ क्या है, एम्प्टी भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि Q2 रहे या फिर Q0 है। यहाँ 3 स्टेट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस में कितने आपके पावर सेट ऑफ Q की अगर बात करें तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, 4. 4। ध्यान से देखिए, नहीं सर 3 है. 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम लोग इसीलिए कहा था कि बेसिक सेट थ्योरी आप क्या करें, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, और ये बेसिक चीजें हैं। 2⁻n यही है ना। तो यहाँ एलिमेंट्स कितने, यहाँ देखिए Q में कितने एलिमेंट्स हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q 3 है। 3. सर तो 3 पावर सेट में कितना हो जाएगा, 8. 8। 8 वो आप लिख भी सकते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली एम्प्टी सेट एंड ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ Q0 Q1 एंड Q2, तो वो परमिसिबल है यहाँ। फाइन। तो अब ये पहला जो पार्ट था वो पूछ रहा है कि फाइंड आउट वेदर द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टेबल्स इज NFA और DFA। तो यूनिकली डिफाइन है क्या, नो सर. नहीं है। तो इस केस में ये क्या हुआ, NFA. NFA हो गया। NFA। ओके, तो ये चीज क्लियर है। और बेसिक डिफरेंस की बात करें तो Q वही है, सिग्मा वही है, Q0 वही है, F वही है, केवल अंतर कहाँ आया, डेल्टा। ट्रांजिशन फंक्शन है। वेरी गुड। और इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि इन केस ऑफ DFA डेल्टा इज मैपिंग इनटू Q क्रॉस सिग्मा, while in case of NFA delta is defined as Q cross sigma mapping into power set of Q। ओके, ये चीज क्लियर है ना। यस सर. सेम यहां पर भी देखिए, यूनिकली डिफाइंड है। नो सर. तो ये भी क्या हुआ, NFA हुआ ना। NFA. गुड, आप सबने यही चीजें लिखी हैं। यस सर. गुड। अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की। ध्यान से इसको समझिएगा। सपोज दिस थिंग इज गिवन, Q0 upon reading 0 goes to Q1, 0 and 1, this is the final state, and this is Q0 is the initial state। DFA है या NFA है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, बताइए। DFA है सर. और कोई आकांक्षा, सर DFA है। किसी भी सिस्टम को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किस स्टेट में है। तो स्टेट के लिए हम लोगों ने क्या किया, Q की बात की। तो यहाँ अगर देखें ध्यान से, स्टेट्स क्या हैं, Q0 एंड Q1। Q1। नेक्स्ट इनपुट अल्फाबेट क्या है,
0 and 1. नेक्स्ट डेल्टा, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा क्यू नॉट 0 इज इक्वल टू व्हाट, कहां जा रहा है, Q1. Q1. Next delta Q naught 1 is going where, Q0. Q naught. Q0, sir. Next delta Q1 0 is Q1. Q1. Delta Q1 1 is on Q1. ठीक है, इनिशियल स्टेट क्या है यहां पर, Q0, sir. Q naught is the इनिशियल स्टेट, और फाइनल जो स्टेट्स हैं उसमें यहां पे क्या मेंबर होगा, Q1. Q1. ये हमेशा याद रखना है, F is subset of Q and Q naught belonging to Q is the initial state. ये चीज क्लियर है सबको, Yes, sir. 5 टपल्स कम से कम आज के बाद आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि इन केस ऑफ डीएफए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F, डेल्टा इज मैपिंग व्हाट, Q क्रॉस सिग्मा इनटू Q. इन केस ऑफ एनएफए ये सारी चीजें सेम रहेंगी, बट डेल्टा क्या हो जाएगा, ये मैप करेगा पावर सेट ऑफ Q में. ओके, ध्यान रहेगा. Yes, sir. चलिए, अब अगर मैं कहूं डेल्टा Q नॉट 0 1 कहां जाएगा बताइए, अविनाश. Yes, sir. डेल्टा Q नॉट 0 1 कहां पर जाएगा, सर Q1 पे जाएगा सर, Q1 पे जाएगा. नोटबुक में, अपने नोटबुक में लिखिए इसे सभी लोग, डेल्टा Q नॉट कॉमा 0 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसको आपको लिखना है जल्दी से, सभी लोग लिखिए, और जो लिखा है वो आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे. डेल्टा की डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं, ये कहां से आ रहा है बताइए, किसका मेंबर है ये, Q नॉट, State. Q से, वेरी Q गुड, का. ठीक. और ये जो मेंबर है ये किसका मेंबर है, sigma star, सिग्मा सिग्मा स्टार या सिग्मा, दो आंसर है, बताइए ये सिग्मा का मेंबर है या सिग्मा स्टार का, सिग्मा स्टार सर सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार. ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था तो आपको तो यहाँ बोलना चाहिए कि डेल्टा की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये किसको मैप कर रहा है, सिग्मा को. सिग्मा को, और क्वेश्चन में मैंने सिग्मा स्टार दे दिया, तो क्या ये डिफिनेशन के हिसाब से सही है, No, sir. तो ये एकदम आपके मन में बैठ जाना चाहिए कि when we talk about direct transition function, we are talking about second argument from input alphabet, not from the string. और ये चीज क्लियर रहेगी तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके, तो ये आपका डिफाइन नहीं होगा इन केस ऑफ डेल्टा, लेकिन अगर स्ट्रिंग की बात करेंगे तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की बात होती है. इन सम बुक्स डेल्टा को ही रिप्रेजेंट कर देता है या डेल्टा कैप लिख देता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. व्हेन वी टॉक अबाउट डेल्टा, दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट मैपिंग फ्रॉम Q क्रॉस सिग्मा इनटू Q इन केस ऑफ DFA और इन केस ऑफ NFA
power set of Q. Okay, so if you are having a string, then you are going to say like this, Q naught 0 1 डेल्टा स्टार. अब ये क्या है, ये आप मैपिंग कर सकते हैं. ओके, अब आपने जो कहा कि Q नॉट 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है. नेक्स्ट Q1 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे ही रह रहा है. तो डेल्टा स्टार Q नॉट 0 1 इज गिविंग द रिजल्ट एज Q1. कि हम लोगों का ट्रांजिशन कहाँ होगा, Q1 से. तो जब स्ट्रिंग हो जाए सेकेंड पार्ट, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन. ये चीज क्लियर है? जी यस सर. सर. तो अब हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं क्या एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को? यस और नो? Yes, sir. पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है, देखिए ध्यान से, स्टेट से आ रहे हैं ना? यस यस सर. और नो? यस सर. यस सर. यस. और सेकेंड आर्गुमेंट कहां से आ रहा है, सिग्मा या सिग्मा स्टार? Sigma star. और मैपिंग कहां हो रही है, Q. ये चीज ध्यान रखिएगा. ओके, डेल्टा स्टार इज मैपिंग Q क्रॉस सिग्मा स्टार इनटू Q. ओके, तो ये हम लोग अगर रिकर्सिवली डिफाइन करना चाहें, सपोज यू वांट टू डिफाइन इट रिकर्सिवली, देन वी कैन यूज फॉलोइंग थिंग. ध्यान से देखिएगा, इसको साथ में लिखते चलिए. डेल्टा स्टार Q लैम्डा इज इक्वल टू Q. ये किसको डिनोट कर रहा है, Empty string. एमपीटी. एम्प्टी स्ट्रिंग. अगर कुछ भी नहीं है तो हम लोगों ने क्या कहा कि इट विल रिमेन ऑन द सेम स्टेट. फाइन. नेक्स्ट, डेल्टा स्टार Q WA is equal to delta of delta star QWA. ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर Q is belonging to the states, the set of states. Next, W is member of sigma star. A is belonging to the input alphabet. Fine. यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग डायरेक्ट ट्रांजिशन फंक्शन की बात कर रहे हैं. ओके, सेकेंड आर्गुमेंट कहाँ से आ रहा है, सिग्मा से आ रहा है. यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की बात हो रही है. सेकेंड आर्गुमेंट कहाँ से आ रहा है, सिग्मा स्टार से आ रहा है. ये डेफिनेशन क्लियर है. डेल्टा स्टार Q लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, Q इटसेल्फ. डेल्टा स्टार Q WA, W किसको बिलोंग कर रहा है, स्ट्रिंग को, और ये क्या है, एक अल्फाबेट. तो अल्टीमेटली स्ट्रिंग कॉन्केटेनेटेड विथ अल्फाबेट इटसेल्फ इज अ स्ट्रिंग. तो इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया किस तरह से, डेल्टा ऑफ डेल्टा स्टार QWA. ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, सपोज आपके पास जो एग्जाम्पल था उसमें आपने ये देखा था, 0 पे कहाँ जा रहा था, Q1 पे. ठीक है, और डेल्टा Q1 1 पे कहाँ जा रहा था, Q1 पे ही. फाइन. यस सर. Q1 ही था. आप लोगों ने आंसर दिया था ना, डेल्टा स्टार Q0 0 1 इज इक्वल टू Q1, है ना? तो 1 पे जा रहा था ना, यस और नो?
जी सर। Yes, फाइन। sir. अब हम लोगों को ये रिकर्सिवली फाइंड करना है डेल्टा स्टार क्यू नॉट 0 1। ओके, सेम एग्जांपल आई थिंक रखा है जो आपको वीडियो में दिया था, ताकि एक बार फिर से क्लियर हो जाए। अब बताइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। रिकर्सिव डेफिनेशन आपके सामने है, ये दो इक्वेशन है ना, डेल्टा स्टार क्यू लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डेल्टा स्टार क्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा स्टार क्यू डब्ल्यू ए। तो क्या यहाँ लैम्डा दिख रहा है क्या? नो सर। तो मतलब हम लोगों को पहला इक्वेशन यहाँ यूज करेंगे क्या? नो सर। नो सर। नहीं। तो ये किस में फिट बैठेगा? सेकंड। सेकेंड में। तो उसके अगर फॉर्मेट से कंपेयर करें तो यहाँ W क्या होना चाहिए? 0। W इज 0 और A क्या होना चाहिए? 1। 1। तो अब क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, डेल्टा ऑफ डेल्टा स्टार Q क्या है? क्यू नॉट। Not Q नॉट। वेरी गुड। और W क्या है? 0। 0. 0। A क्या है? 1। 1। इस तरह से लिख दिया, फाइन। लेकिन अभी भी वैल्यू तो नहीं आई ना, नो सर। तो मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये डेल्टा स्टार फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ट्रू और नॉट? यस सर। Yes, sir. ट्रू। चलिए, तो डेल्टा स्टार क्यू नॉट 0 की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या ये किसी फॉर्मेट में बैठ रहे हैं? फर्स्ट वाले फॉर्मेट। फर्स्ट में। तो यहाँ तो आपका एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है, है क्या? ये तो सर सेकंड में ही बैठ रहा है। सेकेंड में ही बैठ रहा है। ओके फाइन। तो अल्टीमेटली आपको दो आर्गुमेंट तो चाहिए ना, अगर सेकेंड में बैठाना है तो दो आर्गुमेंट चाहिए। एक क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए। ट्रू और नॉट? स्ट्रिंग यस सर। कॉन्कैटिनेटेड विद अल्फाबेट। तो 0 तो को लैम्डा क्या ले लेंगे हम लोग। इस तरह से लिख सकते हैं, अभी आप लोगों ने देखा था, लैम्डा concatenated with W और W concatenated with lambda is nothing but W itself। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। Yes, sir. यस सर। तो लैम्डा 0 और 0 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों फॉर्मेट में हम कोई सा भी यहाँ यूज कर सकते हैं। यस और नो? सर लैम्डा 0 यूज करेंगे। लैम्डा 0 यूज करेंगे। निहारिका आप बताएं, विच फॉर्मेट वी आर गोइंग टू यूज, लैम्डा 0 और 0 लैम्डा। और सभी लोग क्या करें, डेल्टा स्टार क्यू नॉट 0 दोनों चीजें लिखें, लैम्डा 0 भी लिखें और 0 लैम्डा भी लिखें अपना नोटबुक में, जल्दी से, यू हैव 2 मिनट्स। सपोज यहां पर हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा स्टार क्यू नॉट 0 लैम्डा लिखा। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ डब्ल्यू ए के फॉर्म में आना चाहिए, 0 तो डब्ल्यू के फॉर्म में है, लेकिन लैम्डा क्या ए के फॉर्म में है? नो नो सर। सर। ये पार्ट है किसका, सिग्मा स्टार का। तो मतलब इस फॉर्मेट में तो हमें ये इक्वेशन नहीं बैठेगा, तो इस कारण से ये हम यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, डेल्टा स्टार क्यू नॉट लैम्डा 0। अब ये देखिए डब्ल्यू ए एम्प्टी स्ट्रिंग इज एन स्ट्रिंग और ए इज 0, तो अब एक्सटेंड कर सकते हैं ना, यस और नो? यस सर। यस सर। डेल्टा ऑफ डेल्टा स्टार, बताइए क्या होगा यहाँ? Q not lambda. क्यू नॉट एट लैम्डा।
lambda, next 0. 0। 0. 0. आप ध्यान से देखिए, ये आपका पहले इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ना, डेल्टा स्टार क्यू लैम्डा। देखिए यही कह रहे हैं ना, डेल्टा स्टार क्यू जी लैम्डा सर, इज इक्वल यस टू सर, व्हाट, क्यू इटसेल्फ। तो Yes, sir. यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा स्टार क्यू नॉट लैम्डा इज इक्वल टू Q naught. Q naught. क्यू नॉट। सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, 0। ठीक है, क्यू नॉट 0। ये क्यू नॉट कहां से आया, डेल्टा स्टार क्यू नॉट लैम्डा, इसने दिया क्या, क्यू नॉट, और अल्टीमेटली यहाँ 0 आया। तो अब आप बताइए ये डिफाइंड है कि नहीं, डेल्टा क्यू नॉट 0। Defined है sir. तो ये क्या वैल्यू दिया, Q1. तो आपको डेल्टा स्टार क्यू नॉट 0 की वैल्यू मिल गई ना। Yes, sir. तो अगर ये वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, डेल्टा ऑफ Q1, ये वैल्यू अभी आपने ऑब्टेन की 1। ओके, डेल्टा ऑफ Q1 1 ऑल्सो डिफाइंड, Yes, sir. क्या हो जाएगा, Q1. Q1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकर्सिवली इसको फाइंड करके आप ये इक्वेशन बना सकते हैं और डेल्टा स्टार बना सकते हैं। तो ये चीज क्लियर है ना। Yes, sir. सभी लोग चैट बॉक्स में लिखें यस और नो। अब आपका टास्क ये है, जो मैंने डीएफए बनाया था उसमें आपको फाइंड करना है डेल्टा स्टार क्यू नॉट 011। हो जाएगा, Yes, sir. यहाँ पे W क्या रहेगा, 0 1. 01, और A आपकी वैल्यू हो जाएगी 1। 1. ठीक है, तो ये आप चूंकि अभी आपने क्या किया, क्यू नॉट 01 फाइंड कर रखा हुआ है ना, डेल्टा स्टार क्यू नॉट 01 फाइंड करके रखा हुआ है, तो इस वैल्यू को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसको करके देखिएगा। ओके, ओके फाइन। सो जस्ट सी हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके, यही डायग्राम था ना। यस सर, चलिए सपोज वी आर हैविंग दिस स्ट्रिंग। ओके, अरे आवाज आ रहा है तुम लोग का। ओके, just try to process this string starting with the initial state, जो पहले दिन हम लोगों ने टास्क किया था। ठीक है, आप किस स्टेट पे पहुंच रहे हैं, Q1. Q1। यस, Q1। जिनका आज पहला क्लास है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो देखिए ध्यान से। वी हैव टू स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट। इनपुट स्ट्रिंग इज व्हाट, 0 1 1 1। फर्स्ट सिंबल इज व्हाट, 0। आफ्टर रीडिंग 0, Q naught goes to Q1. We are talking about DFA because each move is uniquely defined. Next 1, after reading Q1, it remains on, the value is what, Q1. Next again Q1, again Q1. Fine. So after processing entire symbols of this string starting with the initial state, we are reaching at the final state, isn't it? Yes, sir.
and Yes, sir. this is nothing but the acceptance criteria for a DFA. ध्यान से इस बात को समझिए, क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोसेसिंग किस स्टेट से स्टार्ट हो रही है, Q naught. Q naught. Q naught is what? Initial state. इनिशियल स्टेट. किसी में हो सकता है कि Q1 इनिशियल स्टेट हो, किसी में Q2 हो, इट डजेंट मैटर. जहां भी इनिशियल स्टेट है वहां से हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे. अच्छा, एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट हो सकते हैं ना? No, sir. No, sir. No, sir. पक्का ना? Yes, sir. मोनाजिर आप बताइए, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि एक से ज्यादा नहीं हो सकते या हो सकते हैं? क्योंकि सर ये Q naught जो इनिशियल स्टेट है हाँ, वो बिलोंग्स कर इस बिलोंगिंग्स टू Q. हाँ, मतलब एक मेंबर है, वो सबसेट नहीं है, है ना? यस सर. ये चीज सबको ध्यान रखना है. ओके, तो यहां से हम लोगों ने ये देखा कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, इनिशियल स्टेट से. प्रोसेसिंग करनी है सारे सिंबल्स की. तो इनपुट स्ट्रिंग में जैसे आप क्या है 0 1 1 1 सारे सिंबल्स को वन बाय वन आपने प्रोसेस किया. फिर आप किसी पार्टिकुलर स्टेट पे पहुंच रहे हैं, और ये पार्टिकुलर स्टेट अगर मेंबर हो किस सेट का, फाइनल स्टेट का, जो फाइनल सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं. तो अगर ऐसी केस आपको मिल रही है तो आप क्या करेंगे कि कहेंगे कि जो दिया गया स्ट्रिंग है वो क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है. ओके, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. ये चीज क्लियर है? Yes, sir. मनीष, Yes, sir. अब आप रिपीट करिए इस चीज को जो मैंने कहा. व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया? Sir, Acceptance criteria for a particular string by a DFA. क्या क्या कंडीशन होता है? सर जो सर क्यू से सर स्टार्ट होगा, जैसे इनिशियल स्टार्ट होगा सर इनिशियल पर जाएगा, और जो फाइनल वाला फाइनल पे पहुंचेगा सर, फाइनल स्टेट से फाइनल पे जाएगा. फाइनल स्टेट से फाइनल पे जाएगा, इनिशियल से इनिशियल पे जाएगा. हर्ष आप बताइए. हर्ष, आर यू देयर? यस सर. हाँ, यस सर. बताइए. सर इसका क्राइटेरिया ये है कि सर ये मतलब इनिशियल स्टेट एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है. और इसका रीज़न आप बताएं, क्योंकि ये मतलब सबसेट मतलब नहीं है, डिफाइन नहीं होता, इसलिए. वो तो ठीक है, लेकिन मैं प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ. ठीक है, आपके पास एक स्ट्रिंग दिया गया, आपका एक क्वेश्चन आया है कि वेदर दिस स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड और नॉट. ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कैसे देंगे? सर जो फाइनल जो आ रहा है यदि वो आपका फाइनल स्टेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q2 आता तो वो फाइनल स्टेट होता तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा. कंप्लीट डिफाइन कोई कर सकते हैं क्या? अपने से बोलिए. So starting Yes, sir. from the initial state, in this case it is Q naught, and if we are reaching to the final state, whether it is Q2 or Q3 from this state, so in that case the string will be accepted. Very good. After processing entire symbols of the string, starting with the initial state, if you are reaching at the final state, then that string is going to be accepted by the given finite automata or DFA. ये चीज क्लियर है? यस सर. तो अब आप W इज इक्वल टू लिखिए एग्जाम्पल. W इज इक्वल टू 111 और मुझे बताइए कि क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी. नो No, सर. sir. नो. सभी लोग प्रोसेस कर लीजिए. किस स्टेट से स्टार्ट करेंगे? Q naught. Q नॉट से. 1 कहाँ जाएंगे? Q naught. Q naught. Again 1, it will remain on Q naught. Again 1, it will remain on Q naught. Fine. तो ये हम लोग क्या फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं? नो सर. नहीं पहुंच रहे. तो मतलब क्या है,
this string is not going to be accepted by this DFA. क्लियर हो गया नहीं ये? यस सर। चलिए अब हम लोग इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं. A string X is accepted by a finite automata or DFA. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन 5 टपल बोलिए जल्दी से. क्यू सिग्मा Q डेल्टा sigma Q sigma डेल्टा 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 क्यू नॉट डेल्टा Q नॉट क्यू नॉट एफ और हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ना, तो यस सर। डेल्टा स्टार की बात होगी या डेल्टा की बात होगी? डेल्टा स्टार डेल्टा स्टार. स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग किस स्टेट से करनी होगी अगर एक्सेप्टेंस की बात करनी है तो? इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट. कैसे रिप्रेजेंट किया है इनिशियल स्टेट को? एरोहेड क्यू नॉट क्यू से. नॉट यहाँ पे 5 टपल रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रिंग कौन सा दिया गया है जिसका एक्सेप्टेंस आपको चेक करना है? एक्स यहां तक क्लियर है ना? डेल्टा स्टार क्यू नॉट एक्स ये क्या वैल्यू देगा? यस, फाइनल स्टेट एफ। जरूरी है कि फाइनल स्टेट देगा? अगर देता है तब नहीं एक्सेप्ट सर होगा। क्यू नॉट एक्स इसका इंटरप्रिटेशन समझ लीजिए पहले सभी लोग. यू आर स्टार्टिंग विद द इनिशियल स्टेट, processing entire symbol of the given string x, and you are reaching at this state q. If this q is belonging to set of final state, then we are going to say that the string given x is accepted by that DFA of finite automata. Okay, तो ये चीज क्लियर हुआ? नो सर, एक बार और बता दीजिए सर. ध्यान से समझिए. अभी हम लोगों ने देखा कि आपके पास एक स्ट्रिंग है. ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा कब? जब आप प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे क्यू नॉट से और कहां पहुंचेंगे? एक स्टेट क्यू पर जो कि किसका मेंबर होगा? इस फाइनल स्टेट के सेट का. ठीक है. तो अल्टीमेटली अगर ये स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के बाद आपको फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं स्टार्टिंग विद द इनिशियल स्टेट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू से दैट दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. मैथमेटिकली हम क्या कर रहे हैं? इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस तरह से? तो डेल्टा स्टार क्यू नॉट एक्स. ओके, you are processing the entire symbol of this string and starting with the initial state. और ये कहाँ पहुंच रहे हैं आप क्यू? अगर ये आपका मेंबर हो फाइनल सेट के स्टेट्स के साथ तो डेफिनेटली क्या होगा? ये जो स्ट्रिंग दिया गया है वो एक्सेप्ट होगा. तो a string x is accepted by a DFA. M is equal to q sigma delta q naught f if delta star q naught x is equal to q for some q belonging to f. ये कंडीशन आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे. ओके, क्लियर है यहां तक? यस सर यस सर यस यस सर। सर. फाइन. अगर यहां तक क्लियर है तो फिर आपके लिए एक टास्क है, जल्दी से आप बताएंगे. यहाँ कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है? कोई बोलेगा नहीं अभी, सभी अपने नोटबुक में लिख लेंगे. उसके बाद मैं जब पूछूंगा तो आप बताएंगे.
कितने स्टेट्स हैं इसमें? 1. 1. फाइन। इनिशियल स्टेट कौन सा है? Q1. Q1, Q0. सर क्यू नॉट Q0। फाइनल स्टेट कौन सा है? Q0. क्यू नॉट कोई सा इनपुट सिंबल दिख रहा है क्या? No, sir. नहीं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग अगर करेंगे तो किसी स्ट्रिंग पे प्रोसेसिंग हो सकती है क्या इस पे? कोई सा भी स्ट्रिंग? तो सारा स्ट्रिंग के लिए तो सेम ही रहेगा ये। सारा स्ट्रिंग मतलब जैसे 0 1 अगर रखेंगे तो क्या ये प्रोसेस कर पाएगा? यस सर। सर एक डेड स्टेट बना लेंगे डेड स्टेट उसमें है प्रोसेस क्योंकि कर देंगे। नहीं नहीं, आपको बनाना कुछ नहीं है, ये जो आपको दिया गया है इसी पे वर्क करना है। 0 और 1 यस सर वही प्रोसेस वही हो पाएगा? नो सर। क्योंकि 0 1 तो मेंशन ही नहीं है कहीं, है ना? तो कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जो है कि ये प्रोसेस कर पाए, जो आज का डिस्कशन है पूरे क्लास सर एम्प्टी स्क्रीन एम्प्टी सर एम्प्टी एम्प्टी। स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, वेरी गुड। एम्प्टी स्ट्रिंग का लेंथ क्या होता है? 0 0, सर 0 जी। है ना? तो मतलब अगर हम कहें कि इस तरह का कोई अगर सिस्टम आपके पास है तो कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा? Empty string. एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी सर स्ट्रिंग। 0 जीरो नहीं, जीरो आपका नहीं है यहाँ पे, एम्प्टी स्ट्रिंग है, लेंथ 0 होता है उस स्ट्रिंग का, ये ध्यान रखेंगे। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेट का ये क्वेश्चन है, इफ इनिशियल स्टेट इज आल्सो द फाइनल स्टेट देन एम्प्टी स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा जो भी कंडीशन है वो तो है ही। तो एम्प्टी स्ट्रिंग अगर एक्सेप्ट करना है तो क्या होना है? इनिशियल स्टेट को क्या होना होगा? फाइनल स्टेट Final. होना होगा। ठीक है, तो स्टार मार्क करके इस पॉइंट को भी आप लिख लेंगे अपने नोटबुक में। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। अब नहीं ना भूलेंगे, ये याद नहीं करना है, सिंपल सी बात है, इनिशियल है वही फाइनल हो गया। आप कहीं मूव नहीं कर रहे, कोई लेंथ नहीं मूव हो रहा है, तो क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग की बात है। इंटायर सिंबल्स मतलब कोई सिंबल नहीं है, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, फाइनल स्टेट तक पहुंच गए, कंडीशन सेटिस्फाइड, definitely that string is going to be accepted, and in this case the string is itself an empty string. Okay, क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए,